Yes, in the last lecture we have started the concurrency control. Okay, concurrency control we have starting. What is the meaning of concurrency? मतलब the multiple transaction can be executed simultaneously. Okay, multiple transaction on the same database, can be executed simultaneously. That is called the concurrency. When multiple transactions are performing on the same database, then we have to manage that transaction. Why? Because to maintain the database consistency. Okay, if we don't handle that transaction, then the database will be in the inconsistent state. What is the meaning of consistence? मतलब क्या? Proper correct data should be updated in the database. Okay, I have already told you the example in the last lecture. If we are maintaining the common notebook for all the students in the classroom and for the teacher, then we have no idea which student update that notebook when. Okay, and what data are updated in that notebook. So confusion will be created. So the same thing for the database. If multiple transactions are simultaneously access the same database, then there will be chances to go to the database in inconsistent state. Okay, so then we see the problems: lost update, dirty read, unrepeatable read. Okay, when concurrent मतलब simultaneous transaction, multiple transaction are executed in the uncontrolled manner. If we have not provided some rules, regulations, protocols, we have not applied at the time of coding. Okay, database, when we are creating the database, and कोई हमने उसमें रूल्स रेगुलेशन एनफोर्स नहीं किया है at that time, the several problems may be occur. Okay, the first is lost update, dirty update, unrepeatable read. Okay, lost update we have covered in the last lecture. If transaction T1, suppose there are two transactions performed simultaneously, the first is transaction T1 and the second one is transaction T2. Okay, if both the transaction T1 and T2 both read a record and then update it, okay, उसको update करें, the effect of the first update will be overwritten by the second update. Why? Because दोनों transaction को नहीं पता है कि simultaneously दूसरा transaction भी चल रहा है. Okay, for example, see here, but this is a transaction 1, this is a transaction 2, and both are accessing the same database X. Okay, दोनों एक ही database को access करे, एक X database को. For example, first the transaction A जो है, that is reading the database को read कर रहा है at the time T1. आफ्टर दैट डेटाबेस थम टाइम के बाद सेकंड ट्रांजैक्शन एंटर हो रहा है सिस्टम में, वो भी सेम डेटाबेस को रीड कर रहा है. ओके, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ट्रांजैक्शन जो है वो डेटाबेस को अपडेट कर रहा है. ओके, मतलब उसने डेटाबेस को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, डेटा चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज कर दिया डेटाबेस. बट जो ट्रांजैक्शन टी बी ट्रांजैक्शन जो है, ओके, ट्रांजैक्शन बी जो है उसको नहीं पता. ओके, वो अवेयर नहीं है, उसको नहीं पता. उसको तो क्या लगेगा कि पुराना वाला डेटा ही जो मैंने रीड किया है वही मेन डेटा, तो वो उस पर ही काम करेगा. ओके, तो वो अगर अपडेट करा है तो वो किस पे अपडेट होगा, जो उसने रीड किया था पुराना वैल्यू उस पर ही डेटाबेस जो है वो मॉडिफाई होगा. ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन ए ने जो किया था वो डेटाबेस में क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा. जो लास्ट ट्रांजैक्शन परफॉर्म करा है वो ओवरराइड हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड दी अपडेट लॉस्ट. ठीक है, मतलब जो अपडेट किया था फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो लॉस्ट हो गया, वो डेटाबेस में चेंजेस हो ही नहीं रहा है उसका, वो ओवरराइट हो गया. हम लोग कभी कभी फाइल सेम फाइल होता है, तो इफ यू आर क्रिएटिंग द सेम फाइल नेम, ओके, सेकंड टाइम थर्ड टाइम, तो आपको पूछ रहा है आपको रिप्लेस करना है, ओवरराइट करना है कि न्यू क्रिएट करना है. ठीक है, तो डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा. तो ये दिस इज वन प्रॉब्लम. द सेकंड प्रॉब्लम इज डर्टी रीड प्रॉब्लम. Okay, dirty read problem also we have covered in last lecture. In other, what is the meaning of dirty read problem? A transaction T1 updates the record. Okay, transaction T1 जो है record update कर रहा है, which is read by the transaction T2, जो transaction T2 ने read कर लिया. Okay, but after some time transaction T1 क्या हो गया, fail हो गया, abort हो गया. वो fail हो गया, abort हो गया, तो क्या हो जाएगा, डेटाबेस जो है ऑटोमेटिकली प्रीवियस स्टेट में था वो स्टेट में आ जाएगा. बट T2 ट्रांजेक्शन के पास कौन सा वैल्यू है, जो ट्रांजेक्शन T1 ने अपडेट किया था वो वाला वैल्यू है. बट नाउ डेटाबेस कौन से स्टेट में है, ट्रांजेक्शन T1 फेल हो गया तो डेटाबेस कौन से स्टेट में चला जाएगा, जो प्रीवियस स्टेट में था वो वाला स्टेट में. तो ट्रांजेक्शन T2 है, वैल्यू जो होगा उसके पास वो कौन सा वाला वैल्यू होगा, न्यू वाला वैल्यू होगा. बट डेटाबेस अब वो वैल्यू यूज नहीं कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द डर्टी रीड प्रॉब्लम्स. ओके, ऑल आर दी प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम्स अकर हो सकता है कभी जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन साथ में परफॉर्म हो रहा है. तो ये प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव द प्रोटोकॉल्स. हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है.
ओके वो भी हम इसके बाद वी विल लर्न दैट प्रोटोकॉल्स ओके बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा है डेटाबेस में तो क्या क्या इश्यू क्रिएट हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, देन उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट ओके example is given here, ठीक है, no need to read example. One more problem is there. Okay, this one is the third one problem, the read problem, but this is the third one. Okay, inconsistency and retrieval problem. Okay, unrepeatable read or inconsistent retrievals occurs when a transaction calculates some summary aggregate function over the set of data while other transaction are updating the data. Okay, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक ही बैंक में बैंक देयर इज ओनली वन डेटाबेस फॉर द बैंक, ओके, तो एक ही बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करे, वो बहुत सारे एम्प्लॉइज आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉइज, हाँ एम्प्लॉइज नॉट द यूजर, एम्प्लॉइज वो डेटाबेस को एक्सेस करे, ठीक है, तो वो साइमल्टेनियसली पॉसिबल है कि 3 एम्प्लॉइज 4 एम्प्लॉइज एक ही डेटाबेस पे काम करे, ठीक है, तो डेटाबेस में वो दो एक ही टेबल में वो लोग सब चेंजेस करे, ओके, तो पॉसिबल है कि कोई एक एम्प्लॉय है जो कुछ एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अदर कोई एम्प्लॉय है वो डेटाबेस में अपडेट क्वेरी लिख रहा है, और कोई एम्प्लॉय और कोई चीज कर रहा है, पॉसिबल है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अगेन डेटाबेस का जो स्टेट है कंसिस्टेंट स्टेट है वो क्या होगा, मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। So the problem is that the transaction might read some data before they are changed and other data after they are changed, thereby yielding the inconsistent results. In short, जब multiple transaction perform हो रहा है तो we have to maintain database. Okay, कैसे maintain करना है कि वो consistent state में होना चाहिए, कैसे state में consistent मतलब correct value, database कैसे होना चाहिए, हर एक को same ही data should be display. Every employee जो भी employee changes कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वी हैव द सॉफ्टवेयर, तो उसमें मैं कुछ चेंजेस करूँ तो अदर फैकल्टी को तुरंत समझ में आना चाहिए कि यस वो चेंजेस हो रहा है, हम सारे टीचर्स के पास एक ही डेटाबेस है, ठीक है, अगर मैं कुछ चेंजेस करूँ तो चेंजेस तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल एज ड्राइव, ठीक है, ड्राइव कभी यूज किया है, गूगल ड्राइव क्या है, शेयर्ड है, ठीक है, वो अगर मैं गूगल ड्राइव बना के शेयर कर रही हूँ सबके साथ, ठीक है, आप स्टूडेंट के साथ या तो कोई टीचर्स के साथ, आई एम शेयरिंग इन गूगल ड्राइव, मैं गूगल ड्राइव में कुछ चेंजेस कर रही हूँ ना, तो साइमल्टेनियसली और कोई भी टीचर्स है तो और कोई स्टूडेंट वो सेम ड्राइव में चेंज करे तो वहाँ पे लिख के आता है यस नाउ अभी ये वर्किंग में है, ओके, तो वो क्या है, वहाँ पे उन्होंने प्रोटोकॉल्स रूल्स जो है वो अप्लाई किया है, जिसने गूगल ड्राइव कंसेप्ट बनाया है वो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग वाला ने क्या डिसाइड की, क्या बनाया उन्होंने रूल, किया तो कोई उसमें साइमल्टेनियसली भी एक्सेस हो रहा है तो वो शो होना चाहिए, तो दैट टाइप ऑफ कोडिंग दे आर डन, ओके, तो हमको ऐसे ही जब हम लोग डेटाबेस पे काम करते हैं, ठीक है, जब डेटाबेस शेयर्ड है मल्टीपल यूजर्स पॉसिबल है कि उस पर काम करें, तो वी हैव टू प्रोवाइड सम प्रोटोकॉल्स एट द टाइम ऑफ कोडिंग के टाइम पे, ठीक है, जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करें तो हमको उसमें प्रोटोकॉल्स रूल्स अप्लाई करना है कि अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन भी हो रहा है तो डेटाबेस का जो स्टेट है वो मेंटेन होना चाहिए, मतलब डेटाबेस में जो भी चेंजेस हो रहा है वो एवरी यूजर्स को या तो यस एवरी यूजर्स को दिखना चाहिए कि नाउ अभी डेटाबेस ये स्टेट में उसका फाइनल वैल्यू ये है, यू आर यूजिंग दिस वैल्यू, ओके, ठीक है, तो उसको इनकंसिस्टेंट ड्राइवर प्रॉब्लम्स, ओके, अगेन आई एम रीडिंग unrepeatable read, okay, or inconsistent retrieval you can say occurs when a transaction calculates some summary aggregate function perform कर over a set of data while साथ में दूसरा transaction जो है same database वो database को update कर रहा है, what is the problem, the problem is that the transaction might read some data, okay, before they are changed and other data after they are changed, thereby yielding the inconsistent results, okay, in a unrepeatable read, the transaction T1 read a record and then does some other processing during which the transaction T2 update the records. Okay. Now, if T1 read the records, the new value will be inconsistent with the previous value. Okay. मतलब in short क्या है कि एक एम्प्लॉइज कुछ काम कर रहा है उस पे डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है तो सेकंड एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए कि नाउ अभी डेटाबेस पे ये काम चल रहा है, तो अगर वो उसको कुछ एक्सेस करना है डेटाबेस को चेंज करना है तो न्यू वैल्यू पे चेंज करे, ओके, तो क्या हो जाएगा डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में हो जाएगा, तो ये सारे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव दी प्रोटोकॉल्स, ओके, वी हैव दी प्रोटोकॉल्स, उसको क्या बोलते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, उसको क्या बोलते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, ओके, different concurrency
Control protocols offer different benefit between the amount of concurrency they allow and amount of overhead that they impose. Okay, ये different rules है, protocols है. What is the meaning of protocols? Protocols मतलब क्या? Some rules, some condition that we have to follow. Okay, the first protocol है that is lock-based protocols. These protocols will apply at the time of database creation. Okay, जब हम लोग database create करते हैं, ठीक है, जब हम लोग database create करते हैं, yes, surplus set of rules. जब हम लोग when we are creating the database, so we have to use these protocols. ये जो conditions जो है जो हमको apply करना है at the time of database creation, so that क्या होगा कि जब multiple transaction होगा तो database inconsistent state में नहीं जाएगा. Okay, so I am explaining these protocols. If you have any doubts, you can ask me anytime. Okay, खुद एक बार read करो, recorded lectures again and again watch करो, ठीक है, उसको समझो. अगर नहीं समझ में आ रहा तो again I will explain, don't worry. तो different protocols हैं. Concurrency क्या है? Now you know what is the meaning of concurrency. Okay, concurrency क्या है? When concurrency हो रहा है database पे, ठीक है, multiple transaction perform हो रहा है database पे, तो क्या issue create हो सकता है? Okay, वो issues हमने देखे. Now जो issues create हो रहा है, ठीक है, issues create हो रहा है, तो उसको कैसे sort out करना है? तो using the protocols. This is the solutions. Okay, these are the solution. Protocols are the solutions. Now, which are the protocols? These four are the protocols. The first is block-based protocols. The second is two-phase protocol, timestamp-based protocols, and validation-based protocols. Okay, the different approaches you can say to handle the concurrency control issues. जो है ऊपर जो हमने issues देखे, वो issues को handle करने के लिए these are the different approaches. So you can use any. इसमें से आप कोई भी approaches you can use. Okay, जो आपको suitable है, जो आपको requirement के हिसाब से fit बैठ रहा है. तो फर्स्ट हम लोग देख रहे लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स. ये स्टूडेंट समझ में आ रहा है? थोड़ा कुछ के ऊपर से जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ फुल्ली थियरी कंसेप्ट है ये वाला, ठीक है. तो थोड़ा सा आपको यू हैव टू बी एक्टिव. ओके, थोड़ा उसको सुनना पड़ेगा. यस अरुण, ओके ओके ओके. यस अदर स्टूडेंट प्लीज डाउट है तो यू कैन आस्क मी. ओके, यस. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करें. द फर्स्ट प्रोटोकॉल, द फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल. ओके, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है? अगेन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन 2 to 3 टाइम्स, तो आपको थोड़ा रोज रोज सुन सुन के यू विल गेट क्लियर आइडिया. ओके, चलो. लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल. फर्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, ओके, इन दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल एनी ट्रांजैक्शन, ओके, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल. क्या सॉल्यूशन दिया उन्होंने? लॉक बेस्ड. ओके, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल. देखते हैं अभी इस प्रोटोकॉल में उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया है टू सॉर्ट आउट द अबव इश्यूज. जो हमने अबव इश्यूज देखा कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा है तो कंफ्लिक्ट अकर हो रहा है, ठीक है, डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा रहा है. तो ऐसे तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया है कि डेटाबेस मेंटेन हो जाएगा, कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा. तो देखते हैं. द फर्स्ट इज लॉक बेस्ड. तो इन दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल any transaction, okay, any transaction cannot read or write the data until it acquires an appropriate lock on it. Okay, again I am reading. In this type of protocol any transaction, कोई भी transaction, okay, cannot read or write the data. okay, कोई भी transaction सिस्टम में एंटर हो गया तो कोई भी ट्रांजैक्शन डायरेक्टली डेटाबेस को रीड एंड राइट नहीं कर सकता until कब तक? जब तक it acquires an appropriate lock on it. फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम में एंटर हो रहा है तो कोई ट्रांजैक्शन डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जा रहा है तो वो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता. उसको एक्सेस करने से पहले उसको परमिशन लेना पड़ेगा. ओके, उसको लॉक जो है एक्वायर, उसको लॉक लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? लॉक. ओके, लॉक इज वन टाइप ऑफ वेरिएबल. जो हम लोग प्रोग्रामिंग में लॉक कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वन टाइप ऑफ वेरिएबल हम लोग लेंगे एज ए लॉक करके, ठीक है. until it acquires appropriate lock on it. ओके, लॉक हमको लेना पड़ेगा. तो उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को कि मुझे डेटाबेस एक्सेस करना है. सो आई वांट द लॉक. ओके, so there are two types of lock. The first is shared lock and the second is exclusive lock. Just listen. Okay, just listen. I will repeat again this. Okay, there are two types of lock. The first is shared lock. The second is exclusive lock. Okay, the first is shared lock. The second is exclusive lock. What is the first lock? Shared lock क्या है? It is also known as read only lock. Okay, it is also known as read only lock. In a shared lock, the data item can only read by the transaction.
in a shared log, the data item can only read by the transaction. It can be shared between the transactions because when the transaction holds a log, then it can't update the data on the data item. Okay, मीन्स इफ कोई ट्रांजैक्शन अगर शेयर्ड लॉक एक्वायर करे, वो शेयर्ड लॉक के लिए रिक्वेस्ट करे, उसको शेयर्ड लॉक चाहिए, तो वो उसको शेयर्ड लॉक दे दिया, तो यूजिंग शेयर्ड लॉक से वो डेटाबेस को ओनली क्या कर पाएगा, रीड। वो डेटाबेस में कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा, ओनली डेटाबेस को क्या करेगा, रीड ही कर सकता है। ओके, एक्सक्लूसिव लॉक, इन द एक्सक्लूसिव लॉक द डेटा आइटम कैन बी both read as well as written by the transaction। अगर ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव लॉक गेन कर रहा है, ओके, अगर ट्रांजैक्शन जो वो एक्सक्लूसिव लॉक के लिए रिक्वेस्ट करा, उसको एक्सक्लूसिव लॉक मिल भी गया, तो वो जब उसके पास एक्सक्लूसिव लॉक है, तो वो डेटा आइटम को क्या करेगा, डेटाबेस को वो चेंज भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। मतलब द ट्रांजैक्शन कैन रीड एज वेल एज राइट द डेटाबेस। ओके, this lock is exclusive and in this lock multiple transactions do not modify the same data simultaneously। ओके, अगर एक ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूसिव लॉक दिया है, तो अगर सेम एट द सेम टाइम है, तो आफ्टर द सम टाइम सेकंड ट्रांजैक्शन सिस्टम में आ रहा है, तो उसको एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिलेगा। एट अ टाइम एक ही ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूसिव लॉक मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगेन जो हमने नोटबुक वाला एग्जांपल दिया था, वो हम लोग रिफर करते हैं। सपोज मैंने क्लासरूम में बोला ये एक ही नोटबुक हम सारे स्टूडेंट्स को सबको यूज करना है, मतलब एक ही नोटबुक में हम लोग सब जो भी है नोट डाउन करेंगे तो असाइनमेंट्स लिखेंगे। तो क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, ओके, एंड नोटबुक एक ही है, तो कोई भी आके कभी भी आके नोटबुक ले लेगा, कुछ भी उसमें लिखेगा तो नहीं समझ में आएगा। तो मैं क्या कर दूंगी, व्हाट आई विल डू, कि मैं वहां पे एक रूल बनाऊंगी कि जो भी स्टूडेंट ये नोटबुक में यूज कर रहा है, ठीक है, उसको सबसे पहले आके मेरा परमिशन लेना है। तो मैं परमिशन दूंगी, मैं नोट डाउन करूंगी ये स्टूडेंट आया, तो वो अभी वही यूज करेगा, ठीक है। तो जो कोई और स्टूडेंट है वो आके वो नोटबुक को यूज नहीं कर सकता, वाई, क्योंकि मैंने उसको क्या दिया है, परमिशन दिया है। आई हैव गिवन, आई विल गिव द परमिशन, 2 टाइप्स का परमिशन दूंगी। एक तो वो नोटबुक को रीड कर सकता है एंड सेकंड है वो नोटबुक में राइट कर सकता है। अगर मैंने वो स्टूडेंट को बोला कि तुम नोटबुक में ओनली रीड ही कर सकते हो, ओके, तो वो क्या करेगा, रीड ही करेगा, वो स्टूडेंट उसमें राइट नहीं कर सकता। सेकंड स्टूडेंट आ रहा है मेरे पास, बोल रहा है मैम मुझे भी ये नोटबुक चाहिए, बट मुझे ओनली रीड करना है, उसमें राइट नहीं करना है। तो मैं क्या बोलूंगी, ओके, ये वाला बंदा रीड कर रहा है तो आप भी उसको रीड कर सकते हो। तो मल्टीपल स्टूडेंट कैन रीड दी नोटबुक साइमल्टेनियसली। ओके, बट अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे ये नोटबुक चाहिए फॉर दी रिटर्न, मुझे उसमें कुछ अपडेट करना है, तो मैं क्या बोलूंगी, नाउ वेट, अभी वेट करो, ठीक है। तो मैं उसको परमिशन नहीं दूंगी। ओके, जब फर्स्ट 2 स्टूडेंट है वो अपना काम खत्म कर लिया, उसने मुझे रिटर्न किया, देन मैं उसको क्या करूंगी, थर्ड वाले स्टूडेंट को नाउ अभी बोलूंगी, यस नाउ यू कैन टेक नोटबुक एंड यू कैन राइट। उसके बाद और कोई स्टूडेंट आ रहा है, बोलेगा मैं मुझे भी ये यूज करना है, तो मैं क्या बोलूंगी, नाउ वेट, क्योंकि मैंने ये वाले स्टूडेंट को दिया, तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। ओके, तो ये कंसेप्ट अप्लाई होता है इन दी डेटाबेस में। ओके, कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम में एंटर हो रहा है, ओके, तो एंटर होने से पहले ट्रांजैक्शन को क्या लेना पड़ेगा, लॉक। ओके, ट्रांजैक्शन हैव टू एक्वायर द लॉक। ओके, ट्रांजैक्शन को लॉक लेना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन अगर शेयर्ड लॉक ले रहा है, अगर उसने शेयर्ड लॉक लिया, तो दैट ट्रांजैक्शन कैन ओनली रीड द डेटाबेस। ओके, एंड मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन टेक दिस शेयर्ड लॉक साइमल्टेनियसली। ओके, मतलब ओनली रीड करना है तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन साथ में डेटाबेस को रीड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं होगा। इफ अगर कोई ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव लॉक ले रहा है, ओके, तो दैट ट्रांजैक्शन कैन अपडेट द डेटाबेस एंड एट द सेम टाइम कोई और ट्रांजैक्शन आ रहा है तो उसको हम लोग एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। व्हाई, बिकॉज जब वो डेटाबेस को, वो ट्रांजैक्शन डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर रहा है, तो और कोई ट्रांजैक्शन आके उसमें डेटाबेस को चेंज नहीं कर सकता। तो इससे क्या हो जाएगा कि डेटाबेस जो है, डेटाबेस में जो वैल्यू जो है, ठीक है, वो करेक्ट मॉडिफाई होगा एंड वो कंसिस्टेंट स्टेट में होगा। मतलब एट ए टाइम एक ही ट्रांजैक्शन कैन अपडेट द डेटाबेस। ओके, so this is a log based protocol and all these things ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, थ्रू दी कोडिंग। अभी आपको लगेगा ये लॉग क्या है, ये कौन लॉग बनाएगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, कौन करेगा, कैसे ट्रांजैक्शन को पता चलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है। जब हम लोग डेटाबेस में क्रिएट करते हैं, कोडिंग करते हैं, एट दैट टाइम हमको वहां पे कंडीशन लिखना पड़ता है। ओके, तो दैट इज अ लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। तो लॉग मतलब हम लोग एक वेरिएबल ही क्रिएट करेंगे, जैसे आप लोग काउंटर के लिए वेरिएबल क्रिएट करते हो ना, आप क्या करते हो, काउंटर के लिए यू आर क्रिएटिंग दी वन वेरिएबल, इंटीजर काउंटर, या तो सी कोई भी वेरिएबल और टेकिंग, उसको इंक्रीमेंट करवाते रहते हो। ओके, तो सेम वैसे ही लॉग बेस के लिए हम लोग क्या लेंगे, लॉग के लिए वेरिएबल ले लेंगे और उसका वैल्यू हम लोग इनिशियली 0 करेंगे। अगर 0 है तो वो अवेलेबल है, 1 है तो किसी ने उसको ऑब्टेन किया हो, तो
ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉक, शेयर्ड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड मतलब क्या, ट्रांजैक्शन कैन रीड ओनली रीड द डेटाबेस। ओके, yes, Sarfraz, a database lock is used to lock some data in database. yes, मतलब लॉक किया मतलब क्या हो गया, ओनली वन, एक टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन वो डेटाबेस को अपडेट कर पाएगा। ऐसे ही हुआ तो क्या हो जाएगा कि डेटाबेस कभी इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं जाएगा। ओके, मतलब एक उसने अपडेट किया, देन नेक्स्ट डेटाबेस को समझ में आएगा कि यस अभी मेरी बारी है और डेटाबेस अभी ये वाले स्टेट में है। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉक प्रोटोकॉल्स अवेलेबल। ठीक है, लॉक प्रोटोकॉल्स तो है, बट देयर आर अगेन उसमें 4 टाइप्स उन्होंने किया। 2 टाइप्स का लॉक है, शेयर्ड लॉक है, एक्सक्लूसिव लॉक है। अगर ट्रांजैक्शन के पास शेयर्ड लॉक है तो ट्रांजैक्शन कैन ओनली रीड द डेटा, नॉट राइट द डेटा। अगर ट्रांजैक्शन के पास एक्सक्लूसिव लॉक है तो दैट ट्रांजैक्शन कैन रीड एंड एज वेल एज राइट दैट डेटा डेटाबेस। ओके, there are 4 types of lock protocols available. The first is simplistic lock protocol, the second is pre-claiming lock protocol, third is two-phase locking protocol, and fourth one is strict two-phase locking protocol. Okay, locking protocols मतलब क्या, ट्रांजैक्शन को लॉक एक्वायर्ड करना है। ओके, 2 टाइप्स का लॉक अवेलेबल है। नाउ उसमें भी उन्होंने क्या किया, 4 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स बनाए। द फर्स्ट इज सिंप्लिसिटिक लॉक प्रोटोकॉल। एवरी प्रोटोकॉल लॉक प्रोटोकॉल में 2 लॉक तो होगा, एक्सक्लूसिव एंड शेयर्ड। the first जो protocol है that is simplistic lock protocol, sorry, simplistic lock protocol. It is a simplest way of locking the data while transaction. Simplistic lock based protocol allow all the transaction to get the lock on the data before insert or delete or update or on it. Okay, it will unlock the data item after completing the transaction. मतलब क्या होगा, कोई ट्रांजेक्शन आ रहा है, ओके, कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है तो वो ट्रांजैक्शन जब डेटाबेस को एक्सेस करेगा तो क्या कर देगा, डेटाबेस को लॉक कर देगा। ओके, और कोई ट्रांजैक्शन आएगा तो वो ट्रांजैक्शन उसमें एंटर नहीं कर पाएगा जब तक प्रीवियस वाला ट्रांजैक्शन अपना काम खत्म नहीं करता है तब तक। ओके, फिर थर्ड ट्रांजैक्शन आ रहा है तो वो वेट करेगा कि प्रीवियस ट्रांजैक्शन जब डेटाबेस को एक्सेस करा है उसने अनलॉक किया है कि नहीं। मतलब एट अ टाइम ओनली वन ट्रांजैक्शन कैन एक्सेस डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड द सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। इट विल अनलॉक द डेटा आइटम आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई सपोज ट्रांजैक्शन T1 आ रहा है सिस्टम में, वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, साइमल्टेनियसली T2 आ रहा है तो T2 कैन नॉट एक्सेस दैट डेटाबेस। व्हाई? बिकॉज अभी T1 जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, उसका अपना काम खत्म होगा T1 का, वो लॉक रिलीज करेगा, मतलब वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, देन आफ्टर सेकंड ट्रांजैक्शन कैन यूज दैट डेटाबेस। ये सिंपल रूल है, दैट इज अ सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। ओके, द नेक्स्ट प्रोटोकॉल दैट है दैट इज अ प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। क्या है प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल, मतलब क्या, the pre-claiming lock protocols evaluate the transaction to list all the data items on which they need the lock. Okay, before initiating execution of the transaction, it requests the DBMS for all the locks on all those data items. For example, पहले देखो फिर मैं बताती हूँ, example explain करती हूँ. If all the locks are granted, then this protocol allow the transaction to begin. When the transaction is completed, then it release all the locks. मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, जब ट्रांजैक्शन आ रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, इसमें ऐसे नहीं था, इन द फर्स्ट में क्या था, ट्रांजैक्शन आ रहा है, हर एक ट्रांजैक्शन को लॉक दे दिया जाएगा, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वी वांट दिस लॉक। अगर डीबीएमएस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको एक्सेस दे रहा है, नाउ यू कैन यूज दैट, तो वही ट्रांजैक्शन कैन एक्सेस द डेटाबेस, उसको क्या बोलते हैं, प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। ओके, before initiating execution of the transaction, it requests DBMS. Okay, it requests DBMS for all the lock on all those data items. If all the locks are granted, then this protocol allows the transaction to begin. When the transaction is completed, then it releases all the locks. Okay, if all the locks are not granted, अगर उस database ने grant नहीं किया, permission नहीं दिया, then this protocol allow the transaction to roll back and wait until all the locks are granted. ओके, अगर उसको डेटाबेस ने एक्सेस नहीं दिया, वो ट्रांजैक्शन को लॉक नहीं दिया, ओके, तो उसको वो ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो दिस इज अ प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल, यू कैन सी। ओके, फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसको लॉक ग्रांट किया है, ठीक है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, अपना काम खत्म कर दिया, व्हेन इट विल कंप्लीट इट ट्रांजैक्शन का जो काम उसने अब तक खत्म कर दिया, तो वो लॉक को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ओके,
मतलब जो ट्रांजैक्शन जो है दे हैव टू टेक दी परमिशन फॉर दी लॉक्स। अगर डेटाबेस ने उसको परमिशन ग्रांट किया तो ओके, डेटाबेस ने उसको परमिशन ग्रांट किया, देन आफ्टर वो ट्रांजैक्शन क्या करेगा, अपना जो भी उसको काम करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, वो ट्रांजैक्शन कैन परफॉर्म दैट अपना प्रोसेसिंग ऑन दैट डेटाबेस, और अपना काम खत्म करने के बाद वो क्या कर देगा, उसको रिलीज कर देगा। ओके, टोकन सिस्टम यू नो, ओके, अपने टोकन कभी कभी कोई मॉल में वगैरह टोकन भी देता है, ठीक है, यस ये आपका टोकन है, आप जाओ अंदर अपना काम खत्म करके आओ, टोकन रिटर्न कर दो। अगर आपको टोकन नहीं दिया तो यू कैन नॉट एंटर इन दी मॉल में, तो कोई भी एंटर नहीं कर सकते। तो सेम थिंग उन्होंने अप्लाई किया प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं उसको, प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। रिलीज मीन्स रिटर्न दी लॉक, यस रिलीज मतलब क्या, अपना काम ट्रांजेक्शन खत्म हो गया तो वो क्या कर देगा, अपना लॉक जो वो छोड़ देगा, रिलीज करना छोड़ देगा, ठीक है, जो उसने रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, लॉक इज अटेंड, उसने रिक्वेस्ट किया, उसको लॉक मिल गया, मतलब ना वो ट्रांजेक्शन डेटाबेस को एक्सेस करा, अपना काम खत्म हो गया तो वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, उसको छोड़ देगा। जैसे आप टोकन आपको मिलता है, आप मॉल में जाते हो, आपको टोकन मिला, मॉल में जाके घूम के आते हो, अपना टोकन आप क्या करते हो, उसको रिटर्न कर देते हो बाहर से, ठीक है, बाहर आके टोकन रिटर्न कर देते हो, आपने क्या किया, टोकन रिलीज कर दिया, तो सेम वैसे ही लॉक क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। लॉक क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, मतलब छोड़ दिया उसने, अपना काम छोड़ दिया, अभी उसने रिलीज कर दिया तो डेटाबेस को क्या समझ में आएगा, नाउ अभी डेटाबेस में कोई भी काम नहीं करे तो डेटाबेस क्या करेगा, डेटाबेस विल असाइन दिस लॉक टू अनदर ट्रांजैक्शन, दूसरे ट्रांजैक्शन को लॉक दे देगा। ओके, उसका लॉक उसने यूज किया, मतलब जब कोई भी ट्रांजैक्शन लॉक है उसके पास, तो कोई और ट्रांजैक्शन वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, दैट इज अ प्री क्लेमिंग लॉक। ओके, गुड, आई नो द कंसेप्ट इज थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, आपको इतना जल्दी समझ में नहीं अगर आया तो अगेन आई विल एक्सप्लेन टुमारो, डोंट वरी, ठीक है, हमारे पास टाइम है, वी विल गो स्लोली स्लोली। ओके, द नेक्स्ट दैट इज अ टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। ओके, उसके बाद जो है दैट इज स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, बट मैं आज ये कवर नहीं करूंगी बिकॉज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है उसके लिए वी हैव दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। उसमें हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में टू टाइप्स का लॉक है, एक तो शेयर्ड लॉक है, एक्सक्लूसिव लॉक है, दो ही लॉक मिलेगा, एक तो शेयर्ड मिलेगा या तो एक्सक्लूसिव मिलेगा। शेयर मतलब क्या, डेटाबेस को ओनली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। एक्सक्लूसिव लॉक मतलब क्या, डेटाबेस को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। और हमने एक देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स है, उसमें फर्स्ट हमने देखा सिंपलिसिटी लॉक प्रोटोकॉल। सिस्टम में ट्रांजैक्शन आ रहा है, उसको लॉक दे दिया, ठीक है, डेटाबेस को एक्सेस करा है, अपना लॉक रिलीज कर दिया, सेकंड ट्रांजैक्शन आ रहा है, उसको दे दिया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। सेकंड दैट इज अ सिंपलिसिटी प्रोटोकॉल। सेकंड क्या है, प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल, मतलब ट्रांजैक्शन जो सिस्टम में एंटर हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, द ट्रांजैक्शन हैज टू टेक परमिशन फॉर द लॉक, के लिए उसको परमिशन लेना है। ओके, क्या करना है, परमिशन लेना है। अगर उसका परमिशन ग्रांट हो रहा है, ठीक है, डेटाबेस को ग्रांटेड कर रहा है परमिशन, यस नाउ यू कैन यूज दैट, तो ही वो ट्रांजैक्शन क्या करेगा, डेटाबेस को एक्सेस करेगा, दैट इज अ प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट टाइप्स है जो वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, and yes student, you have to submit the assignments, only 14 या तो 15 student have submitted the assignment in the Google Classroom. Please submit the assignment, do the practicals जो मैंने आपको बोला है complete करो। ओके, तो असाइनमेंट 1 ही मैंने पोस्ट किया था जिसका ड्यू डेट हो चुका है, ठीक है, तो यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट एंड टुडे आई विल गिव द डेट फॉर द सेकंड असाइनमेंट। ओके, एंड व्हिच क्वेश्चन यू विल राइट इन द असाइनमेंट, जो टॉपिक्स हमने कवर किया यूनिट 1, ठीक है, दैट यू विल राइट इन द यूनिट 1 के असाइनमेंट में लिखोगे। यूनिट 2 का जो टॉपिक्स है दैट यू हैव टू राइट इन असाइनमेंट 2। अगर आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है तो टुमारो मैं लेक्चर्स में जो है आई विल गिव दी अगेन, आपको रिवाइज कर दूंगी कौन से टॉपिक्स कौन से असाइनमेंट में यू हैव टू राइट, बट ऑल द स्टूडेंट्स ओके यू हैव टू राइट द असाइनमेंट, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओनली 40 या 15 स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किया इन द गूगल क्लासरूम असाइनमेंट 1, तो प्लीज सबमिट द असाइनमेंट। मैम हाँ मैम, वो फर्स्ट असाइनमेंट कहाँ मिलेगा, वो गूगल क्लास में है क्या, क्लासरूम में? एक्चुअली ना मैंने जो टॉपिक्स वी हैव कवर्ड ना यूनिट 1 में, दैट यू हैव टू राइट ओके इन एज असाइनमेंट 1, एंड आई हैव पोस्टेड ऑल द टॉपिक्स इन द गूगल क्लासरूम। तो अगेन यू आर न्यू स्टूडेंट ना, तो अगेन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो आई विल एक्सप्लेन कि कैसे क्या लिखना है, ठीक है, तो टुमारो आई विल एक्सप्लेन इन द लेक्चर। ओके मैम।
and new student have the Okay, ma'am. okay, you have the extra time. I will give you the extra time. Yes. अभी के अभी सबमिट नहीं करना है. You will take 1 week for completing the assignment. Okay, so आप मत करो. जो Okay, ma'am. जो काफी टाइम से एडमिशन लिया है जिनका, वो उनको सबमिट करना है. न्यू स्टूडेंट्स कैन सबमिट द असाइनमेंट आफ्टर 1 week. नो इश्यू. Okay, okay. Okay, ma'am. Yes. And yes, anyone has any doubt in today's lecture? मैं आज 2 ही प्रोटोकॉल्स किए हम लोगों ने, ठीक है. व्हाई? बिकॉज आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए, ठीक है. आई विल प्रोवाइड दिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है. तो प्लीज लिसन दैट लेक्चर्स अगेन इन द इवनिंग एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. यस ज्योति. यस, हाँ, आपने सबमिट किया है ज्योति. जिसने नहीं किया उसको मैं बोल रही हूँ. ओके, 14 या 15 स्टूडेंट ने सबमिट किया है. जो रिमेनिंग स्टूडेंट है दे हैव टू सबमिट. उनको बोल रही हूँ. जिसने सबमिट किया उनका नो इश्यू, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? ओके.